Today we are going to start with chapter number 6, Soil and Water. In this chapter we will study about soil and water. You know that water is a precious resource and we should use it properly without wasting. ठीक है, सॉइल भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. देखो वो भी बेस ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं होगा तो जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, प्लांट्स और हमें वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स देते हैं, वो हमें नहीं मिलेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. India is a big country, crores of people live in it. We get our daily needs from various natural resources of our country. Resources are such basic things that can be used in many ways. Soil, water, forest, mineral and livestock are natural resources. अगर हम बात करें soil की, water की, forest, minerals और livestock, ये क्या है आपके natural resources है. Now all natural resources are either exhaustible or inexhaustible. मतलब कुछ क्या है, रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, जैसे कि आपका मेटल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. जो मेटल्स की बात करें वो अवेलेबल है लिमिटेड क्वांटिटी में एंड कैन बी एग्जॉस्टेड, वेयर एज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लाइक एयर, सोलर एनर्जी डू नॉट गॉट एग्जॉस्टेड. अगर हम बात करें एयर की, सोलर एनर्जी की, एग्जॉस्ट नहीं करते. जो हमारी कंट्री है वो रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में. We use soil to grow cotton, cereals, vegetables, fruits in fields and gardens. We use water. देखा होगा हम water का use करते हैं ड्रिंकिंग में, इरिगेशन में, कुकिंग में. Now soil. Soil is the base of our life. It is important natural resource. We grow cereals, cotton trees in it for our food, clothes and timber. देखो हम cereals उगाते हैं, cotton उगाते हैं, देखो clothes के लिए, food के लिए. Now formation of soil, the crust of the earth is made up of rocks. The heat and cold gradually breaks up the upper layer of the rocks. The rock gradually breaks up into stones, gravel, sand and clay. Particles of the clay are the smallest. जो particles होते हैं clay के वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. Now kinds of soil, there are different kinds of soil. ठीक है, और आपकी जो soil होती है वो vary करती है from place to place. First is alluvial soil, desert और sandy soil, black soil, red soil और coarse soil. ये क्या है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है. alluvial soil है, desert है, black soil, red soil और coarse soil. Now I will tell you one by one about all the soil. First is alluvial soil. ये ग्रे कलर की होती है, made up of silt deposit by river. ये ग्रे कलर की होती है और ये किससे बनती है, जो सिल्ट डिपॉजिट हुआ है रिवर से. The river flowing from the mountains carry large amount of soil with them. The soil of northern plain. अगर हम बात कर दें northern plains की, जो यहाँ की soil है वो कैसी है, alluvial है. ये आपको coastal plain में मिलती है. कहाँ मिलती है, coastal plain में. Alluvial soil is very fertile for growing wheat, maize, sugarcane, rice, jute, pulses and oilseed. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा fertile होती है. यहाँ पे आप wheat उगा सकते हैं, jute उगा सकते हैं, maize उगा सकते हैं, rice उगा सकते हैं. Now, desert or sandy soil. Soil in western desert is generally sandy. It is not fine. It is very fertile. Millets, मतलब जिसे हम ज्वार और बाजरा कहते हैं, वो यहाँ पे grow करता है. But when irrigated well, it gives food crop of wheat, gram and cotton. Next is black soil. ये आपको north western part of Deccan Plateau में मिलेगी. ठीक है, it is formed by slow breaking of lava rock. Soil made from these rocks are very good for raising cotton and sugar. अगर हम रेड सॉइल की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलेगी डेक्कन प्लेटू के. रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ रॉक कॉल्ड लेटराइट. और ये किसकी बनी होती है, रॉक जिसका नाम है लेटराइट. दिस सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट. रेड सॉइल इज यूजफुल फॉर ग्रोइंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट. ये यूजफुल होती है क्या ग्रो करने के लिए, मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स. नाउ कोर्स सॉइल. द सॉइल इन द हिल्स इज वेरी कोर्स. इट कंटेन्स ग्रेवल्स एंड पीसेज ऑफ स्टोन. It is good for orchards where fruits and trees are grown. ये वहाँ पे orchards के लिए बहुत अच्छी होती है. देखो large variety of soil है. So we grow all kinds of crops in our country where soil are less fertile. Manure formed by decaying of plants and cow dung. Now fertilizer made from minerals are also added to the soil to increase productivity. इससे क्या होता है, जो आपकी soil की productivity है वो increase हो जाती है. Soil conservation. Soil is the only layer on the land surface. Top layer of the soil is more fertile. Rainwater and strong winds carry away topsoil. This is called soil erosion. इससे क्या होता है, जो soil की fertility होती है वो कम हो जाती है. देखो बारिश पड़ी, जो top layer of the soil है वो क्या हो जाती है, पानी के साथ wash away हो जाती है. To check soil erosion means to conserve our soil. We should make small bandhas around the field. The roots of the grasses, shrubs, trees behind the soil together.
नाउ इट इज नॉट इजी फॉर वाटर एंड विंड टू कैरी अवे। इससे क्या होगा कि वाटर और विंड सॉइल को इजिली कैरी अवे नहीं कर पाए। वाटर is essential for life. We cannot live without water. We cannot produce anything from soil without water. देखो पानी नहीं होगा तो we cannot live. ठीक है, बिना पानी के हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज करा जाता है, इरिगेशन के लिए यूज करा जाता है, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। और आपको क्रॉप को इरिगेट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? वाटर। Water for irrigation, the best means of irrigation is rain, but rains are not certain. It rain only a few months in a year. Other main sources of water for irrigation farms are well, tube wells, tanks और canal. ये क्या है? अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन है जिससे आप क्या करते हैं? अपने फार्म को इरिगेट करते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल से देखा होगा वाटर डिग करके। वाटर एंड ट्यूबवेल्स आर लार्जली holes in the ground. Rehats are used to draw water from wells. These open wells are not enough for growing needs. We now dig wells by drilling very deep, narrow holes in the ground. A tube is drilled into it. Water is lifted up. Electric or diesel engines such as wells are called. देखो इलेक्ट्रिक या डीजल इंजन्स का यूज करके हम वाटर को वहां से करते हैं, निकालते हैं। टैंक्स और पॉन्ड्स, बोरिंग ऑफ ट्यूबवेल्स इन रॉकी लैंड इज नॉट पॉसिबल। टैंक स्टोर रेन वाटर। दिस वाटर इज यूज्ड इन ड्राई सीजन। इस वाटर का यूज कहाँ करा जाता है? ड्राई सीजन होता है। कैनाल्स आर स्मॉल रिवर्स मेड बाय मैन। कैनाल्स आर डग टू डाइवर्ट अ पार्ट ऑफ रिवर वाटर टू डिस्टेंट फार्म। इससे क्या होता है? कैनाल से आप क्या कर सकते हो? वाटर को हम डाइवर्ट कर देते हैं। नाउ water for domestic purpose. People in village get water from river, ponds and wells. The people also bath and wash their clothes in ponds and rivers. देखो लोग क्या होते हैं, विलेजर्स जो होते हैं वो अपने पानी ponds या रिवर वेल से लेके आते हैं और उसमें ही वो अपना बाथ करते हैं और अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं। Even they bath their animals in the same ponds and rivers. The water of the well is good, but they are open. People bath and wash near them. दिस मेक्स देयर वाटर डर्टी। देखो वो वहीं बात करते हैं, वहीं कपड़े धोते हैं, उससे क्या होता है? पानी आपका डर्टी हो जाता है और वो अनसेफ हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, क्योंकि जम्स मेक पीपल सिक। हैंड पंप्स आर ऑल्सो यूज टू फिल अंडरग्राउंड वाटर इन सिटीज। वाटर इज अवेलेबल इन हाउसेज थ्रू टैप्स। आपने देखा होगा गाँव में पानी निकालने के लिए हैंड पंप्स का यूज करा जाता था और सिटीज में टैप्स में वाटर आता है। ठीक है, वाटर इज फिल्टर्ड एंड क्लोरिनेटेड बिफोर सप्लाई टू मेक इट जर्म फ्री। वाटर को फिल्टर करा जाता है और क्लोरिनेट करा जाता है, मतलब क्लोरीन डाला जाता है जिससे वो वाटर कैसा हो जाए? जर्म फ्री हो जाए। डैम्स, प्लेट्यू रिवर्स बिकम ड्राई आफ्टर रेन, वाटर इज ओवरफ्लोइंग। हिमालयन रिवर्स ऑल्सो रिड्यूस आफ्टर रेनी सीजन। टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर कैनाल्स, डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर। रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर को देने के लिए क्या बनाए? डैम्स बना दिए गए हैं रिवर के आसपास। डैम इज अ बैरियर टू कीप बैक वाटर एंड रेज इट्स लेवल। द बैरियर ऑफ वॉल्स ऑफ डैम्स आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। इन द कंक्रीट बैरियर आर मेनी नंबर्स ऑफ आयरन गेट्स कॉल्ड स्लूज गेट्स। देखा होगा बैरियर के आपके गेट्स बनाए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्लूज गेट कहते हैं। उनको ओपन करा जाता है और क्लोज करा जाता है काय के लिए? टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर। डैम्स आर मैन मेड लेक्स मेड फ्रॉम देम वाटर इज टेकन टू डिस्टेंट फार्म। उनसे क्या होता है कि वाटर को अलग अलग फार्म्स पे ले जाया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू? कैनाल्स के थ्रू। यूजेस ऑफ डैम्स, डैम्स कंट्रोल फ्लड एंड रिवर। डैम्स गिव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंक। ये फ्लड से कंट्रोल करता है। ठीक है, और रेगुलर सप्लाई जो होता है वाटर का फॉर इरिगेशन उसको भी और ड्रिंकिंग के लिए करता है, सप्लाई करता है। डैम्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। और कैसे इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, डैम्स ऑल्सो हेल्प इन फिश ब्रीडिंग। ये फिश ब्रीडिंग के लिए भी काम आता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस? वाटर फ्रॉम डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द blades of turbine. This forces the blades to turn high speed. The moving turbine work as a generator which produces electricity. Wire are also used to carry electricity to farms. Wires का भी यूज कर जाता है अगर उन्हें अपने फार्म्स पे, फैक्ट्रीज पे, विलेजेस पे क्या ले जाया जाए? इलेक्ट्रिसिटी ले जाए। Now multi-purpose river project, the dams on rivers may use, thus they serve many purposes. Therefore they are called multi-purpose river project. इन्हें क्या कहा जाता है? multi-purpose river project कहा जाता है। जैसे आपका भागरा नागला डैम, ये कहाँ पे? सतलुज रिवर पे है और कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट
रिहान, ये रिहान रिवर पे है उत्तर प्रदेश में। दामोदर, दामोदर रिवर पे है। कोसी, हीराकुंड महानदी रिवर पे है। तुंगभद्र, तुंगभद्र पे है। चंबल और फिर नागार्जुन सागर। जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है वो किस पे है? कृष्णा रिवर पे है। ठीक है, और कौन से प्लेस पे? आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। लेट्स सॉल्व फॉर टुडे। थैंक यू।